Okay, current electricity exercise from NCERT book. We are doing question number 1 from chapter 3, question 1. It says there is a car battery and battery has EMF 12 volt and internal resistance R. This is equal to 0.4 ohm. What is the maximum current? The formula for current is E upon R plus R. This is internal resistance, this is external resistance. When they say maximum current, then we assume that external resistance becomes 0. तब इसकी करंट सबसे ज़्यादा होगी क्योंकि इंटरनल रेसिस्टेंस ज़ीरो नहीं हो सकता. अगर एक्सटर्नल रेसिस्टेंस को हम ज़ीरो कर दें तो ये बन जाएगी I maximum is equal to EMF 12 0.4 and this is equal to how much? 30 एम्पियर. इसका ये मतलब है कि ये वाली बैटरी किसी भी हाल में 30 एम्पियर से ज़्यादा करंट नहीं दे सकती. ठीक है. सो इट ऑल्सो शोज दैट एवरी बैटरी हैज़ ए लिमिटेशन. अगर आप शॉर्ट भी कर देंगे तब भी इससे ज़्यादा करंट वो नहीं देगी. ठीक है. एंड नाउ वी गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन 3.2. ए बैटरी ऑफ EMF 10 वोल्ट A battery of EMF 10 volt, internal resistance 3 ohm is connected to a resistor. If the current in the circuit is 0.5, current in the circuit is 0.5 ampere. What is the resistance of the resistor? This we have to find out. Resistance of the resistor. What is the terminal voltage of the battery when the circuit is closed? V. When circuit closed. हमको याद है अगर सर्किट ओपन होता है नो करंट तब तो V किसके बराबर होता है? E के बराबर. और जब क्लोज होता है उस समय की वैल्यू ये हमसे पूछ रहे हैं. ओके. सिंपल फॉर्मूलाज लगाते जाइए. I 0.5 है, EMF R. What is the relation? I is equal to E upon R plus R. Put the values and this will be 0.5 is equal to 10 upon 3 plus R. And this will give you value of R is equal to बताइए 70 17 3 1.5 correct. And this will come here 8.5. This is 1.5 8.5. और लोग करिए. हाँ ठीक है.
R is equal to 17 ohm. Okay, now we come to 3.3. Three resistors, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm, are combined in series. What is the total resistance of the combination? In series, 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm. 1 ohm, 2 ohm, 3 ohm are combined in series. What is the total resistance of the combination? यहाँ से लेके यहाँ तक का R इक्विवेलेंट कितना होगा? 1 + 2 + 3. हमको क्या याद रहना चाहिए? Addition of all the three, R1 + R2 + R3. Okay. If the combination is connected to a battery of EMF 12 volt with negligible internal resistance, obtain the potential difference across each resistor. इसको हमने एक बैटरी से लगाया and this is 12 volt और internal resistance neglect कर दीजिए. Then what is the potential difference across each? What is the rule of potential difference in series? V1 + V2 + V3 is equal to V. यानी V के डिवीजन हो जाते हैं तो 12 वोल्ट के 3 डिवीजन हो जाएंगे और वो तीनों इक्वल हो ज़रूरी नहीं है. चूँकि तीनों रेसिस्टेंस इक्वल नहीं है इसलिए वोल्टेज भी इक्वल नहीं होंगे. तो इसका वोल्टेज हो जाएगा V1, दिस इज V2 एंड दिस इज V3. वी हैव टू फाइंड आउट दिस वैल्यू. रेसिस्टेंस दिया है और V निकालना है. तीसरी चीज़ क्या होती है? करंट. V का फॉर्मूला क्या होता है? V इज इक्वल टू I इंटू R. अगर हमको I पता चल जाए तो हम R से मल्टीप्लाई करके V निकाल लेंगे. तो हमको I निकालना है. सीरीज में I का रूल क्या है? सब में सेम होता है. अब I निकालेंगे कैसे? तो I निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? I इज इक्वल टू V अपॉन R, बट दिस इज फॉर ए सिंगल रेसिस्टेंस. और यहाँ पर 3 रेसिस्टेंस हैं तो पहला काम अब क्या करना पड़ेगा हमको? तीनों को सिंगल बनाना है. सो वी मेक इट ए सिंगल रेसिस्टेंस एंड दिस सिंगल रेसिस्टेंस इज 6 ohm. ओके, देन इट इज 12 वोल्ट. सो I इज इक्वल टू V अपॉन R, 2 एम्पियर. वी गॉट दी I. यही I ऊपर ले जाते हैं. इस सब में अब करंट फ्लो हो रही है. I इज इक्वल टू 2, I इज इक्वल टू 2 एंड I इज इक्वल टू 2. Therefore potential difference V1 is equal to I into R1. This is I is equal to 2, R1 is equal to 1. So this is 2 volt. V2 I सब में सेम रहता है इसलिए इसका भी I 2 into R2. R2 is 2. This is 4 volt. And V3 is equal to again I 2 ampere and resistance is 3 ohm. So 6 volt. Check. तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस मिला के टोटल के बराबर हुआ या नहीं? 2 + 4 6 and 6 12. Total is 12. So our answer is okay. So this is 3.3 we have done. Now we go for question number 3.4. Three resistors 2, 4, 5 are combined in parallel. There are ये when circuit is closed तो हमने क्या निकाला? R17. तो पूछा क्या है? आपकी इसकी बात कर रहे हैं कि उसकी?
3.2 की 3.2 में क्या आर तो पूछा है? ओ टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस, सेकेंड आंसर। ठीक है, देख लीजिए टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है। V is equal to E minus IR. Here E is equal to 10 minus I is equal to 0.5 into R is equal to 3. So this is 8.5 ohm. Sorry, potential difference, terminal potential difference, वोल्ट। ठीक है, ये इसका सेकेंड आंसर हो गया 3.2 का। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3.4, दिस सेज 3 resistors 2, 4, 5 are combined in parallel. Two, 4, 5. They are combined in parallel. What is the total resistance of the combination? A to B, formula बोलिए। Total resistance A to B, 1 upon equivalent resistance is equal to 1 upon R1, 1 upon R1, 1 upon R3. So this is equal to 5 2s are 10, 10 2s are 20. So this is 10, this is 5, this is 4, this is equal to 19 upon 20. This is 1 upon RAB. So how much is RAB? दोनों को इन्वर्ट करिए, 20 upon 19 ohms. This is resistance equivalent. Okay, now if the combination is connected to a battery of 20 volt, then find out the current through each resistor. इसको हमने लगा दिया 20 वोल्ट की बैटरी के साथ, 20 वोल्ट। अब हर एक में कितना करंट है? करंट के लिए बाकी दो पैरामीटर क्या चाहिए? वोल्टेज एंड रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस हमको दिया हुआ है, तो हर एक की वोल्टेज चाहिए। इसकी वोल्ट कितनी है? पोटेंशियल डिफरेंस, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, तो कितना हुआ? और पैरेलल का नियम याद आया आपको? हर एक के अक्रॉस उतना ही पोटेंशियल डिफरेंस है जितना सेल ने सप्लाई किया, जितना बैटरी ने सप्लाई किया। सो इसका भी V20 है, इसका भी V20 है, इसका भी V20 है, इसलिए हम तीनों का I निकाल सकते हैं। V is 20, R is equal to 5 ohm. ओके, यहाँ शुरू करते हैं V upon R. सो I in resistance number 1 is equal to V upon R. This is equal to 20 upon 2. This is equal to 10 ampere. I2 is equal to V upon R2. This is again V is same, divided by 4, 5 ampere. And I3 is equal to V upon R3. This is again 20 upon 5, and this is equal to 4 ampere. So these are our answers. Anything else asked? No. Now we come to 3.5. Okay. Now we are changing the format. A room temperature 27.0 degree. The resistance is 100 ohm. At room temperature 27 degree Celsius, the resistance is 100 ohm.
resistance is 100 ohm. Now, what is the temperature of the element? Find temperature of element if the resistance is found to be 117 ohm. If R is equal to 117 ohm. Given that the temperature coefficient of material of the resistor, इसका नाम क्या था? अल्फा. Temperature coefficient of material of the resistor is 1.7 into 10 to the power minus 4 degree Celsius. ओके. अब हमको क्या याद करना है? इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेसिस्टर. कोई फॉर्मूला याद आता है थर्मल कोएफिशिएंट वाला? बड़ा फेमस फॉर्मूला है, R इज इक्वल टू, जो भी फॉर्मूला आपको याद हो. मुझे पता नहीं आपको क्या याद है. R इज इक्वल टू आर नॉट प्लस आर नॉट इंटू अल्फा इंटू चेंज इन टेम्परेचर. ये याद है? जो पहले वाला रेसिस्टेंस था और ये क्या है? इंक्रीज इन द रेसिस्टेंस. 1 डिग्री में कितना इंक्रीज होता है? अल्फा. तो T डिग्री में कितना इंक्रीज होगा? अल्फा इंटू T 1 ओम में. और ये कितने ओम है? R0 ओम. तो R0 ओम में इतना इंक्रीज होगा. ओके. अब ये हमारे पास फॉर्मूला है और हमको निकालना क्या है? फाइंड टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट. इसमें टेम्परेचर ऑफ द एलिमेंट कहाँ है? यस, डेल्टा टी के अंदर क्या छिपा हुआ है? यस. और हमको क्या पता है? T1 पुराना टेम्परेचर और निकालना क्या है? नया टेम्परेचर. सो वी विल फाइंड T2 हियर. लेट्स पुट द वैल्यूज. दिस रेसिस्टेंस बिकम 117. दिस इज 100 plus 100 into alpha 1.70 into 10 to the power minus 4 into T2 minus T1. T2 minus T1 27. ये 100 को इधर ले आते हैं. That makes it 17 divided by 100 into 1.7 into 10 to the power minus 4 is equal to T2 minus 27. So T2 is equal to इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लीजिए और मुझे बताइए कितना आया. देखिए इतना आता है क्या?
at room temperature, no, 3.6, a negligible small current is passed through a wire of length 15 meter. Okay, and uniform cross section 6 into 10 to the power minus 7 meter square. यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन को हम क्या लिखेंगे? एरिया. एरिया इज इक्वल टू 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 मीटर स्क्वेयर. ओके, एंड इट्स रेसिस्टेंस इज मेजर्ड टू बी 5 ओम. रेसिस्टेंस R इज इक्वल टू 5 ओम. What is the resistivity of the material? हमको निकालना क्या है? Resistivity. Resistivity of the material at the temperature of the experiment. ठीक है, without any change in temperature, यानी हमको अल्फा कंसीडर नहीं करना है और हमको रेसिस्टिविटी निकालना है. कौन कौन सी क्वांटिटीज इन्वॉल्व हैं? रेसिस्टिविटी, रेसिस्टेंस, एरिया और लेंथ. ये चारों को मिला के डू यू स्ट्राइक एनी इक्वेशन? रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. ठीक है, बिल्कुल. सो आर इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए और रो इज इक्वल टू आर ए अपॉन एल. हमको क्या निकालना है? रो. सो रो इज इक्वल टू आर इंटू ए. हाउ मच इज आर? 5. हाउ मच इज ए? ए इज इन मीटर स्क्वेयर, सो वी विल टेक द वैल्यू एज इट इज. 6.0 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7. नो, हाँ ठीक है, आर इंटू ए. And L will come here. L is 15 meter. This is the value of specific resistance or resistivity. हाँ, इसका यूनिट बताइए. रो का यूनिट क्या होता है? ओम मीटर. ठीक है. .7. A silver wire has a resistance. Resistance is equal to 2.1 ohm at 27 degree. That means temperature is given to us 27.5 degree Celsius, and a resistance of 2.7 ohm at 100 degree Celsius. Determine the temperature coefficient of resistivity. Find alpha. Okay. इसको किस तरह से बनाएंगे? इसमें हमको क्या क्या दिया है? इसमें हमने R की वैल्यू दी है, टेम्परेचर दिया है और 2 बार दिया है. अल्फा हमको निकालना है, डेल्टा T नहीं दिया है. तो हम क्या करते हैं? अच्छा ठीक है, आप जैसा बोल रहे हो वैसा करके देखते हैं क्या आता है. आपका ये कहना है इसको हम मान लें R0 और इसको मान लें R1 एंड वी अप्लाई द फॉर्मूला R0 1 प्लस. ओके,
R0 प्लस वाला ले लेते हैं, जल्दी होगा। अल्फा का फॉर्मूला डायरेक्ट याद है आपको? क्या बोलिए? वेरी गुड, R1 माइनस R0 इंटू यस डेल्टा टी। इस फॉर्मूले से निकाल के देखते हैं। R1 माइनस R0, R1 माइनस R0 0.6 डिवाइडेड बाय R0 2.1 into delta T, change in temperature is 72.5. ठीक है, ओके। तो इसको करके देखते हैं ये कितना आता है। निकालिए। ओके, ये आपने करके देखा 9 इंटू 10 टू द पावर -3। अच्छा, एक दूसरे तरीके से करके देखते हैं। लेट दिस रेसिस्टेंस बी R0 व्हेन द टेम्परेचर इज 0 केल्विन। 0 केल्विन। ओके, सो करेक्ट कैलकुलेशन इज 0.0039। ये आ गया अल्फा का वैल्यू। कैन यू टेल मी व्हाट इज द यूनिट ऑफ अल्फा? अल्फा ओम ओम कैंसल हो गया। दिस इज पर, हाँ, पर सेल्सियस और पर डिग्री केल्विन। C-1 per degree Celsius. Okay, so got it? ठीक है। Now we go to 3.8. A heating element using nichrome connected to a 230 volt supply. Nichrome, voltage 230 volt supply. Draw an initial current 3.2 ampere. Initial current 3.2 ampere, which settle after a few seconds to a steady value of 2.8 ampere. After few seconds, it stabilizes at 2.8 ampere. What is the steady temperature of the heating element? What is steady temperature of heating element? Room temperature is 27. Room temperature is 27 degrees Celsius. Temperature coefficient of resistance of nichrome, alpha for nichrome, this is given to be 1.70 into 10 to the power -4. per degree Celsius. Okay, so what we are supposed to find out? What is steady temperature?
ये क्यों पूछ रहे हैं टेम्परेचर, क्या होता है टेम्परेचर को? तो नाइक्रोम क्या चीज है? देयर इज ए हीटर मेड ऑफ नाइक्रोम। इसको 230 वोल्ट पे हमने स्विच ऑन किया। जैसे ही स्विच ऑन किया, इनिशियली शुरू में करंट कितनी है? 3.2 एम्पियर, और थोड़े एक सेकंड के बाद जब वो लाल गर्म हो जाता है, फिर उसकी करंट कितनी हो जाती है? 2.8 एम्पियर करंट कम हो गई। क्यों करंट कम हो जाएगी? आई का फॉर्मूला बोलिए, V अपॉन R। V तो हमने वही दिया 230 वोल्ट, तो आई कम हो गई, मतलब क्या हो गया होगा? रेसिस्टेंस बढ़ गया होगा। और अब आप समझ रहे हैं रेसिस्टेंस क्यों बढ़ गया होगा? हाँ, जब हीटर को हम स्विच ऑन करते हैं तो शुरू में वो ठंडा था, रूम टेम्परेचर पे था। कितने टेम्परेचर पे बताइए? यस। फिर हमने उसको गर्म किया, गर्म हो गया तो क्या बढ़ गया? रेसिस्टेंस बढ़ गया, तो करंट का क्या होगा? हाँ, वो करंट हमको दी, निकालना क्या है? यस, ये एक स्टेप और ज्यादा हो गया जो हमने पहले निकाला था। तो टेम्परेचर निकालने के लिए हमने क्या फॉर्मूला यूज किया था? R माइनस R0, या R इज इक्वल टू R0 प्लस R0 अल्फा इंटू T2 माइनस T1। ऐसा किया था। ओके, अभी भी वही करेंगे। इसमें आपको कोई चीज का प्रॉब्लम है क्या जो नहीं दिया हो? तो आंसर है, ना तो हमको R2 दिया है, ना R1 दिया है। तो नहीं दिया तो हमको चाहिए। देखिए फिर से, हम अपने दिमाग में क्या सोचते हैं? हम ये सोचते हैं कि हमको टेम्परेचर हाई होने से रेसिस्टेंस का फॉर्मूला मालूम है। इसमें हम ये निकालना चाहते T2, बाकी सब हमको मालूम होना चाहिए। क्या क्या दिया है? अल्फा दिया है, हमको दिया है, T1 दिया है, T2 निकालना है, अल्फा दिया है। अब क्या चाहिए? R0 और R नहीं दिया है। उसके बदले में क्या दिया है? तो क्या आपको करंट और वोल्टेज से R निकालना आता है? सबको आता है। बस बन गया। चलो बनाइए, R निकालो, R0 निकालो, और दोनों की वैल्यू रख के T2 की वैल्यू निकालो। अब इन्होंने दो स्टेप इकट्ठे कर दिए, एक बार R निकालना और एक बार T निकालना। अब बताइए RT कितना? 82.1 एंड दिस इज 71.9. Now it is okay. So 82.1 is equal to 71.9 plus 71.9 into alpha 1.74 into T2 minus T1. T1 is 27. 82.1 minus 71.9 is 10.2. 10.2 divided by 71.9 multiplied by 1.74 into 10 to the power minus 4 into 10 to the power minus 4. This
प्लस 27 इज इक्वल टू T2। अब इसको हमने सॉल्व किया। दिस 10 टू द पावर -4 यहाँ चला गया, 10 टू द पावर +4 बन के, और ये इसको इधर ले लेते हैं। दिस 719 वी कैन राइट इवन 72 फॉर कैंसलेशन पर्पस। सो दिस विल बी 10.2 अपॉन 72. So this we can write as 102,072 into 174. Actually this 174, that's all, plus 27 is equal to T2. और अब इसको थोड़ा सा सॉल्व करके देख लीजिए ये कितना आता है। दिस इंटू 10 टू द पावर 4, ये भी हमको 174 नहीं रखना चाहिए, वी कैन मेक इट 17। सिग्निफिकेंट फिगर का ध्यान रखिए, हमारे क्वेश्चंस में डेसिमल के बाद 1 प्लेस अलाउड है। ये देखिए 3.2, 2.8, डेसिमल के बाद 1, अल्फा में कितना दिया है 2, तो मिनिमम कितना है 1, वी कैन ऑल्सो गो फॉर 1। ओके, अब इसका सॉल्यूशन निकालिए और बताइए T2 कितना आता है। This thing, तो ये हमारा अप्रोक्सीमेटली आया ये 814 प्लस 27, 814 plus 27, and this comes to 841 degree Celsius. This is the answer. ठीक है, ये थोड़ा सा बुक से वेरी कर सकता है। क्यों वेरी कर सकता है? क्योंकि यहाँ पर हमने बहुत सारे ओमिशन किए हैं अप्रोक्सीमेट करके, इसलिए हो सकता है, डजंट मैटर। ठीक है, अगर हम शुरू से कैलकुलेटर से लेते तो हो सकता है हमारा बुक के बराबर आता। ठीक, लेकिन इधर देखिए हम लोगों को मल्टीप्लिकेशन में क्या आ रहा है उसका बॉदरेशन नहीं है। इधर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन में देखिए क्या क्या दिया है और हमको क्या क्या निकालना है। वो चीज आपको समझ में आनी चाहिए कि अगर हमको टेम्परेचर निकालना है तो हमको क्या पता होना चाहिए, R, R0, अल्फा और T1। यहां पर हमको R और R0 कैसे निकालना पड़ा, V/I करके, फिर उसके बाद इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, ये आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन का कोई प्रॉब्लम नहीं, समझ में आया? दिस इज हाउ वी डिड इट। ओके, नाउ वी गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, दैट इज 3.9। 3.9 एक कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस है, उसको मैं ड्रॉ करता हूं।